down and recording in progress as well, which means it's nice now. So, ladies, what we studied yesterday was the IP services, and in the IP services, we want to talk about the NAT or we want to talk about the PAT. It means definitely we want to talk about the network address translation or the port address translation. So these are the two topics which are important for us to understand, and definitely everywhere it is used. जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि if I do the IP config, if I do the CMD here and I use the IP config, as you can see on my screen, so the IP address which has been assigned to me, the IP version 4 address which has been assigned to me is 192.168.18.6. So can you tell me, Alina, whether it is a private address or a public IP address? सर ये प्राइवेट है. तो अलीना का ख्याल है कि ये प्राइवेट है. What is your opinion, Dilaveez? Maybe Dilaveez may not have. जी, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट है. जबकि जो मुझे IP वर्जन 6 का एड्रेस मिला हुआ है, ये प्राइवेट है कि पब्लिक है? सर ये जी ये क्या? ये चलें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही. दिलावेज, डू यू वांट टू से समथिंग? नाउ यू आर ए ग्रेजुएट. तो चले मैं बोल देता हूं, IPv6 में पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब पब्लिक है. ठीक है. तो लेकिन मेरा इस वक्त टॉपिक इस पे है कि मुझे ये IP एड्रेस मिला हुआ है, मेरे DHCP ने मुझे ये IP एड्रेस दिया हुआ है. जो भी मेरा DHCP है, मैंने कंप्लीट कमांड नहीं लिखी. अगर आप कहें तो मैं /all कर दूं तो मोर डिटेल्स नजर आ जाएंगी. तो यहाँ पे आप नजर आ जाएगा कि मुझे IP एड्रेस ये मिला हुआ है, कब मिला है, किसने दिया है, DHCP सर्वर. तो इस मशीन ने मुझे ये IP एड्रेस असाइन किया. ठीक है. इज इट क्लियर, अलीना, अक्सा एंड दिलावेज? सो इफ इट इज क्लियर, which is 100% clear, क्योंकि इसमें whatever you are saying it is the reality, कोई हम theoretical बात नहीं कर रहे. तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक IP नहीं है, प्राइवेट है, तो इसके जरिए तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता. इस वक्त जो मेरी कॉल चल रही है, जो मेरा सेशन चल रहा है आप लोगों के साथ, definitely with this IP I can't. So if I show you further, look at here, and what IP address I have, my IP address, आप भी करके देख सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, even you can do at your end. तो मैं इसको इधर IPv6 का एड्रेस नजर आ रहा है, लेकिन मैं दोनों IP एड्रेसेस देखना चाहूंगा. तो IPv6 तो नजर आ रहा है, IPv4 भी कुछ देर में नजर आ जाएगा. तो आप देखेंगे मुझे IP एड्रेस 192.140.148.165 नजर आ रहा है. Aksa, what is your opinion? Is it a public IP address or a private IP address? शाबाश. सर जी बोलें अलीना, बोलें. क्यों अलीना की आवाज स्टार्ट होती है और फिर कट जाती है? समथिंग इज रिटन इन हियर. सो दिलावेज ने कहा कि ये पब्लिक IP एड्रेस है. दिलावेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि शी रिस्पॉन्डेड दैट this is not a private IP address, this is a public IP address. Agreeing with me? Agreeing with Dilaveez? If not, something written by Aksa, probably she want to say something.
or no? Okay. If you agree, तो हो क्या रहा है? So if you agree, oh, Akshay says it is private. Okay, nice. Akshay is saying it is private. So let me explain that. कल आप नहीं थी, लेकिन let me explain that. मैंने आपको बताया हुआ है कि okay, let me open then something need to be explained. Okay. Okay, जी, so let me explain. ये ITN का पार्ट है, वहां से मैं ये स्लाइड आपके सामने ला रहा हूं. Ladies and gentlemen, if you look at here, yeah, here on slide number 28. Can you see this screen, Usman and everyone? So, sorry, not needed this. So, especially Alina, sorry, Aksa, this is the address. This is the, जैसे आपको मैंने पहले तो ये पता होना चाहिए कि according to this RFC, the IP version 4 addresses are classified into three different classes, three different types scaling. One is public, one is private, and one is the special scaling, reserved scaling, reserved. The public ones are पहले private पे बात कर लेता हूं. Private ones are in all the ABC classes. We have the private addresses available. So in A, this is the series which starts from 10.0.0.0 and ends at 10.255.255.255. So if any node have an address from this range, it is definitely a private IP address with no confusion. Similarly, if the IP address is from B, आप कैसे अगर आप उसे कह सकते हैं, कैसे कहते हो ये A है और B है और C है? Because if the address range is from 1 to 126, it is class A. If it is from 128 to 191, it is class B. If it is from 192 to 3, it is class C. If it is from 224 to 240, it is class, sorry, 239. 239, it is class D. And if it is from 240 to 255, it is class E. I hope there is no confusion on these ranges. So you can see that 10 range is in the first here. That's the reason I wrote here A. Then if you look at 172.16, so this comes 172 comes here. It is in between 128 and 191 range. So that's the reason I wrote here B. And if you look at 192.168, this 192 up to 223 is class C. So especially Aksa, you should see here that this range, if the range is from 195, 192.168.0.0 up to this, it will be considered as a private address. But the address which has been assigned to me, discard. If you look at the address which has been assigned to me is 192.140. Let me write with myself. 192.140.148.165. This is the address which I am using. Okay, come back here. I write here the same address so that you may be able to understand. So here I write 192.140.148.165. Can you see whether this address exists within this range? क्योंकि इनमें तो नहीं है ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना ये 10 की रेंज में है, ना ये 172 की रेंज में है. Please look at here. This is the range which is the private addresses in class C. Whether this address belongs to here, whether this address lies somewhere here. No, sir.
ओके, तो अब उसने एन लिख भी दिया अक्सर ने कि अंडरस्टूड सर. सो इट डजंट, इट मीन्स दैट this is it doesn't belong to this range. That the reason without any sorry, without any doubt, I can say that it is a public IP address. ओके, तो ये तो हमें बात क्लियर हो गई कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, और प्रॉब्लम वी डोंट नीड इट. ओके, तो अगर ये प्राइवेट मेरा वो है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा इसका इशू ये है कि अगर ये मेरा राउटर है और ये मेरा मेरा डिवाइस है, इसको तो एड्रेस मिला हुआ है, इसको तो एड्रेस मिला हुआ है 192.168.18.6, which you can see on my screen, which is a private IP address with no doubt. So which means this is my device which is connected to this access point or access router, and here I am, and the address is 192.168.18.6. While when I leave this router, the address which is assigned to me to talk to the rest of the world is 192.140.148.165. So what it is? Basically, whenever I want to talk within the LAN, this address is unique. It is unique locally. It is unique locally. So I can use this address. I can use this address, no doubt. I can use, sorry. I can use this address. I can use this address, which is 18.6, to talk to other machines which are connected to this LAN, which is a wireless LAN in this case. So, but if I want to reach, for example, NetAcat, if I want to go to the NetAcat, I want to go to the Facebook, I want to go to the YouTube. Ladies and gentlemen, these are not local, these are remote. So this machine, this router, what is it doing? It is taking the packets with the source address this, with the destination address of the YouTube, which is obtained from the DNS, you understand. So what will happen? That it will remove my this address and will append this address in its place. And in this way, this address which is globally unique, is, which means the YouTube or NetAcat or the Facebook will find that the request has been received from this globally unique IP address. So the response also come to the same. And again, this machine will change this address, which is globally unique, into my locally unique address and send within the network. This translation effect between the private address and the public address is called NAT, network address translation. Do you got the is it understandable now? Yes, sir. Okay, all of you, Alina, Aksa, Dilavez, Usman, all of you? Yes, sir. Okay, nice. Okay, if it is nice, then और क्यों आप कल मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि why NAT, उसका जवाब मैंने ये दिया था कल कि the reason behind the NAT is that if we don't lose any address, even the IPv4 address, you understand everyone that it is a 32-bit address. Like here you have seen this address, for example, first octet, this is the first octet, this is the second octet, this is the third octet, this is the fourth octet. In fourth octet, 4 octets means 32 bits.
जी जी सर वो नेटवर्क इश्यू था सर, इसलिए लेट ज्वाइन किया, तो चलिए प्लीज कोई काइंडली थोड़ा कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। रिवाइज। मैंने कुछ भी नहीं सही है पढ़ाया सर, अभी। सही सर, मैं सही। जो आपने कल पढ़ा था, क्योंकि उसमें कुछ लोग नहीं थे, तो मैं उसी पे प्राइवेट और पब्लिक आईपीज में ही बात कर रहा था। मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो सही हम सर, बात ये थैंक कर यू। रहे थे, हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी ली थी कि मेरा जो इसमें जो आईपी मिला हुआ था वो ये था, विच इज यूनिकली लोकल बट इट इज प्राइवेट, बट इट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। कल हमने ये चीजें पढ़ ली थी कि लोकल क्या, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, रिजर्व्ड आईपीज क्या है। तो मुझे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, और मैंने यहाँ से यही चीज मोशन दिखाई कि देखिए मुझे ये आईपी मिला हुआ है। इसमें कोई नई बात मैंने नहीं की, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे ग्लोबली कौन सा आईपी मिला हुआ है, तो मुझे ग्लोबली ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.148.148.165। इसका मतलब मैं जब दुनिया से बात करता हूँ, यानी जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपकी मशीन को ये पता चल रहा है कि ये पैकेट्स इस मशीन से आ रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन का आईपी नहीं है। तो इसमें असल में हो क्या रहा है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हो ये रहा है कि मैं अपने एक्सेस रूटर को जब पैकेट देता हूं, तो मैं अपना प्राइवेट आईपी ये लगाता हूं, मैं अपना ग्लोबल यूनिक आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे जो भी आपके उसका है जूम का, वो लगाता हूं। मैंने एज्यूम कर लिया कि चलिए जी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यूट्यूब, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नेट अकैड, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फेसबुक, तो मैं इनका आईपी लगाता हूँ। जब ये यहाँ पे पहुंचता है, तो इसको तो पता है इस राउटर को कि जी ये पैकेट अगर आगे भेजा जाए तो ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक नहीं है, इसको जवाब कभी भी नहीं आएगा, इसलिए राउटर इसको आगे भेजने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बात भी क्लियर है, क्योंकि यही आईपी एड्रेस मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही आईपी एड्रेस हो सकता है कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हो सकता यही आईपी एड्रेस पिंडी में भी इस्तेमाल हो रहा है, यही आईपी एड्रेस अहमदाबाद में भी हो रहा है, विच मीन्स दूसरे ममालिक में भी हो रहा है, दूसरे सिटीज में भी हो रहा है। तो जब जवाब आएगा यूट्यूब से, तो किसकी तरफ राउटर्स तो पागल हो जाएंगे कि किसको हम ये जवाब दें। इस वजह से उसके लिए जरूरी है कि ये इसके ट्रांसलेशन की जाए और इस एड्रेस के जरिए मुझे यूट्यूब की तरफ भेजा जाए और ये एड्रेस हटा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पैकेट यहाँ पहुंचेगा तो जवाब भी इसके पास ही आएगा। जब जवाब यहाँ पे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में कि ये इसको दोबारा ट्रांसलेट करेगा और इस एड्रेस के ऊपर भेज देगा। यू मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बोल रहा हूं, मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद यूट्यूब, बट इन रियलिटी दिस कनेक्शन इज बीन ब्रोकन, दिस कनेक्शन हैज बीन ब्रोकन at this machine, at this router, and the task which is being performed here is called netting. फिर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर हम नेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा इस मशीन के ऊपर जहां पे नेट चल रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है। जब एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा डिले है। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि 50 होस्ट हो, 50 होस्ट एक ही आईपी से दुनिया से बात कर रहे हैं, तो अगर इनमें 50 में से कोई भी गलत काम करे तो उसका गुनाहगार नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि उसका गुनाहगार यही बनेगा। और यही मसला हमारे साथ यूटी में होता है कि क्योंकि तमाम लोग हम एक ही आईपी एड्रेस को 121 रेंज का आईपी एड्रेस है, हम सब का सब वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर किसी गलत जगह पे ट्रैफिक जाती है और वो हमें ब्लॉक करता है, वो हमें ब्लैकलिस्ट करता है, तो वो इस बंदे को नहीं करता जो इंटरनल है, वो इस आईपी को कर देता है, जिसकी वजह से हमें बाज साइट्स मिलना बंद हो जाती हैं। तो और तो इसमें देखा डिसएडवांटेज है। तो फिर क्यों वाई नैट, जैसे अभी आपने देखा मेरा भी नैट है, मेरा आईपी एड्रेस इंटरनली लोकली ये है और दुनिया मुझे इस एड्रेस से पहचान रही है। सो वाई, बिकॉज कल मैंने एक्सप्लेन किया कि 32 बिट से यू कैन हैव 4.3 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं, विच इज द रॉन्ग एजम्पशन, कि कोई भी आईपी एड्रेस जाया नहीं हो रहा, विच इज द रॉन्ग एजम्पशन, लेकिन फिर भी डिवाइसेस तो मेरे पास 20 बिलियन से, इंटरफेसेस तो 20 बिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब आई डोंट हैव द आईपी रिक्वायर्ड आईपी एड्रेसेस, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। सो द सोल्यूशन वाज कि हम कुछ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया
कि हम कुछ रेंजेस को प्राइवेट कंसीडर करवा दें और एवरीवन विदाउट द परमिशन फ्रॉम एनीवन जीशान दे कैन यूज दिस एड्रेस एंड इन दिस वे टू सम एक्सटेंड हमने जो आईपी की जो कमी थी उसको कुछ हद तक कह सकता हूँ टेम्पररी ओवरकम कर ली। अब मेरी बात समझ आ गई जी? है कोई क्वेश्चन? नो सर क्लियर। ओके, अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो ये दिलावेज ने कहा कि जी शी डजंट हैव एनी क्वेश्चन, लेकिन अगर किसी और का है तो इट डजंट मीन कि उनके लिए पूछने पे पाबंदी लग गई। नहीं सर, क्लियर है सर। ओके, फिर क्लियर मैंने है सर। शाबाश जी, फिर मैंने कहा कि फिर मैंने कहा कि ये जो नेट है ये 3 किस्म का है। एक को मैंने कहा था कि ये और किस तरह आईपी मिलते हैं, ये सारी कहानी मैंने जो कि बेसिकली आईटीएन की कहानी है मैंने वही कल आपके सामने प्रेजेंट की थी और इंशाल्लाह उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। असल में कल हुआ इसलिए आज आपको वीडियो नहीं दे सका कि इसका मतलब है कि मेरी बैटरी जो है वो खराब हो चुकी हुई है और वो मतलब अभी बैटरी थी और अब्रप्टली कंप्यूटर मतलब उसने मुझे नहीं बताया कि जी बैटरी अब खत्म हो रही है, आप पावर लगाओ और सब व्हाटएवर जिस नॉर्मल बिहेवियर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है अब्रप्टली बंद हुआ। जब अब्रप्टली बंद हुआ तो जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो मेरे पास मेरी हार्ड ड्राइव पे नहीं आई थी, तो अभी मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है और कल आपको दे दूंगा। हो सकता है कि आज के लेक्चर के अंदर ही बैठ करके या 2 लेक्चर बना दूं, व्हाटएवर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी हमारे पास 3 टाइप्स के नेट्स हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक नेट, एक को कहते हैं डायनामिक नेट और एक को कहते हैं नेट ओवरलोड जिसको पैट भी कहते हैं, और ये ही मोस्टली नेटवर्क्स में इंप्लीमेंटेड है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप सब लोग, अब तो मैं नहीं कह सकता कि आप यूनिवर्सिटी आए, लेकिन आप अपने घर पे कर लें, चलें एक्सपेरिमेंट। आपके घर पे बहुत से लोग नेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबको कहो कि ओपन करो माई आईपी एड्रेस, तो देखोगे सबका आईपी एड्रेस एक ही है जिसके जरिए वो दुनिया से बात कर रहे हैं, जिसके जरिए वो, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है बाय मल्टीपल पीपल एंड दैट कैन बी डन बाय यूजिंग दिस नेट ओवरलोडिंग फंक्शन। पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्या कल भी एक्सप्लेन किया था कि स्टैटिक नेट क्या है। इट इज वन टू वन मैपिंग, इट इज वन टू। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर एक ही आईपी कितने लोग मतलब यूज कर सकते हैं सर? जी पब्लिक आईपी। जी, एक पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने साथ लिखा है 65,500 लोग इस्तेमाल कर सकते सही हैं। सर। सिर्फ कल भी एक्सप्लेन किया, कल बताया था, दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पे आऊंगा तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो वन टू वन मैपिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब इसी वजह से इसका कोई फ्यूचर नहीं है स्टैटिक नेट का, क्योंकि इसमें वन टू वन मैपिंग है। वन टू वन का मतलब ये है कि आपने अगर इंटरनली आपके पास लेट इट बी 10 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है तो आपको 10 ही पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास .1 आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आपने उसको फॉर एग्जांपल 121.32.52.1 पे मैप कर दिया। इस तरह यहाँ पे .2 है तो यहाँ पे वो .2 पे मैप हो गया, यहाँ पे .3 है तो यहाँ पे वो .3 पे मैप हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जब भी जाना चाहेगा इसके जरिए जाएगा, ये जब भी जाना चाहेगा इस आईपी से जाएगा, ये जब भी जाना चाहेगा इस आईपी से जाएगा। तो ये तो हो रहा है कि इंटरनली एक एडवांटेज है कि अगर आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास 100 नोड्स हैं, उनमें से 90 कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, ओनली 10 जाएंगे, तो 10 को आपने 10 आईपी एड्रेसेस के साथ मैप कर दिया। ऑल्दो के 100 के 100 आपस में इंटरनली बात कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर बात करेंगे तो सिर्फ ये 10 करें। कुछ बात समझ में आ रही? यस सर। तो इस वजह से ये कोई इतना इंटरेस्टिंग सोल्यूशन नहीं है कि यू नीड दी
अगर आपके सारे के सारे ही बार बात, जैसे आजकल का दौर है, एवरीवन कैन बी वांट टू कनेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो देन यू जितने आपके पास इंटरनल है उतने ही आपके पास पब्लिक आईपी चाहिए। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन को इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है और इसलिए इस्तेमाल नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने कल एक्सप्लेन किया डायनामिक नेट। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जेंटलमैन। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टैटिक अच्छा नहीं है सर। स्टैटिक अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है, जैसे कि आपने देख रहे हैं ट्रांसलेशन करनी है, तो फिर ये आईपी इनको डायरेक्टली क्यों नहीं दे देते हो? ऐसा ही है ना? यस सर। तो इसलिए ये मेथड को, मिसाल के तौर पे इसका इन अदर वर्ड, आपकी यूनिवर्सिटी में लेट इट इज्यूम के 5,000 यूजर्स हैं, यू नीड 5,000 आईपी एड्रेसेस, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एग्रीड? यस सर। ओके, तो सिक्योरिटी का मसला टू सम एक्सटेंट, लेकिन फिर भी दुनिया को नजर आएगा कि इस आईपी से आ रहा है, और आपकी मशीन को ये पता होगा जहां पे ये मैपिंग है कि नहीं जी एक्चुअली .1 से आ रहा है, तो आप उस मसले का रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को फिर भी ये नजर आएगा कि ये है। तो इसका मतलब कोई इसलिए स्केलेबल सोल्यूशन कम से कम नहीं है। ठीक है। डायनामिक में मैंने कल ये बताया था, डायनामिक में अलीना मैंने ये कल बताया था, कल अलीना थी कि नहीं? नो सर, कल नहीं थी। चले आज फायदा उठा लो फिर। ठीक है। तो डायनामिक में हमने ये कहा कि आपने अपने पास, मिसाल के तौर पे ये आपका डिवाइस है, यानी नेट है, तो आपके पास यहाँ पे आपने एक टाइट 1-to-1 मैपिंग नहीं की हुई, बल्कि आपने एक पूल डिफाइन कर दिया ऑफ फॉर एग्जांपल 100 आईपीस। तो अब इसका मतलब है कि, और आपके पास यहाँ पे लेट करो कि 1000 यूजर्स हैं, आप समझते हो कि इस बाहर तो सब जाने की इजाजत है सबको, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे है। मिसाल के तौर पे 1 से लेके 100 तक जो पहले यूजर्स आएंगे उनको तो ये पूल से आईपी मिल जाएगा, पब्लिक आईपी मिल जाएगा, एंड इट विल गो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन अगर 101 आए तो उसको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पूल में और आईपीज नहीं है। हाँ, जो ही आप अपना आईपी यहां से पहले 100 में से कोई आईपी फारग करता है, फर्दर उसको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, वो अपना कनेक्शन ड्रॉप करता है, तो इसका मतलब पूल में एक आईपी आ गया, तो 101 जो है वो उसके ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ओ यस सर। वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ये स्टैटिक से बेहतर है। 1000 के लिए मुझे 1000 आईपीज नहीं चाहिए। अगर मैं स्टेटिस्टिकली ये मालूम कर सकता हूं कि एक वक्त में कितने यूजर्स जाएंगे टू दी ग्लोबल कम्युनिकेशन, तो उसके मुताबिक अगर मैं पूल डिफाइन कर दूं तो मेरा मसला टू सम एक्सटेंट रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर भी आई नीड अ पूल, फिर भी आई नीड अ पूल। दैट इज द डिसएडवांटेज। पूल का मतलब है आई नीड मोर आईपीज। ओके। फिर हमने कहा कि हम नेट की तरफ जाते हैं, नेट ओवरलोड की तरफ जाते हैं, जिसको हमने कहा कि पैट का नाम भी दिया जाता है, विच इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पे हम नेटवर्क की बजाय पोर्ट के एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे, स्पेशली यहाँ पे अलीना और दिलावेज मौजूद हैं। अलीना और दिलावेज, हम जब नेसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपने तो देखा है कि हम ब्राउजर में जाके क्या एड्रेस लिखते हैं, 127.0.0.1:8334। डू यू रिमेंबर? यस सर। ठीक है नेसेस ना? का पोर्ट नंबर 8834। वेरी नाइस। तो मुझसे भूला, अलीना को याद है 8834। तो इसका मतलब दो चीजें जाती हैं, एक आपका आईपी जाता है और एक आपका पोर्ट जाता है। ठीक है। और यहाँ पे मोहसिन, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा
मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, मैंने कल भी एक्सप्लेन की, दो चीजें आपको शो करता हूं। एक, सबसे पहले तो आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 हेडर का फॉर्मेट दिखाता हूं। तो इस हेडर में आपको नजर, अभी कुछ देर में नजर आ जाएगा। अगर आपको मेरी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं नजर आ रहा तो यू कैन इंटरप्ट मी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, you can see here G. You can see here the header. So what it has? I want to show only two things. One is the this source address where my cursor is lying. Source address 32 bits and destination address 32 bits. Agreed? इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। नो सर। इसका मतलब ये है कि जब भी पैकेट आएगा एट दी आईपी लेयर तो ये 20 बाइट्स उसके साथ अपेंड हो जाएंगे। गिन लो, अगर गलत कह रहा हूं, ये 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 12 बाइट्स, 16 बाइट्स, 20 बाइट्स। तो ये 20 बाइट्स ऐड होंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट ये 4 बाइट, ये 8 बाइट्स है। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। वेरी नाइस। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं टीसीपी हेडर फॉर्मेट। और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट आइटम मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो ये है जी, वो ये है ये जी। फिर भी ये थोड़ा चल बड़ा हो सकता है जी। हो गया। देखो, इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये 20 बाइट्स ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड करेगा, यानी ऊपर से जो डेटा आया, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आया, उसके साथ जो टीसीपी का हेडर लगेगा, बाय डिफॉल्ट 20 बाइट्स उसके साथ लग जाएंगे। ये 20 बाइट, जिसमें इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस वक्त है द सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। Agreeing with me? Is it cool, Mohsen? Is it cool Yes, to sir. understand? यस सर। वेरी नाइस जी। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर और ये है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो जहां पे या तो टीसीपी है या यूडीपी है। तो जो भी एप्लीकेशन है, लेट करें ऐप 1, A1, ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, जब भी ये टीसीपी को या यूडीपी को देंगे, दे विल पुट, जब यहां पे आएगा तो इट विल हैव ए स्पेसिफिक पोर्ट, जो कि कल भी मैंने बताया था कि क्योंकि अभी आपने देखा कि ये 16 बिट का पोर्ट नंबर होता है, 16 बिट का पोर्ट नंबर होता है। तो दिस पोर्ट नंबर कैन बी फ्रॉम 2 पावर 16 है अगर, तो 265,535। इसका मतलब दिस नंबर कैन बी फ्रॉम 0 to 65,535। इसलिए मैंने वहां पे कुछ देर पहले जब आपने क्वेश्चन किया तो मैंने चुप करके ये लिख दिया था। तो अभी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि होगा क्या कि अंदर से जब मैं ट्रैफिक भेज रहा हूं, ये जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया कि ये मेरा राउटर है जिसके ऊपर पैट कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि अभी आप करोगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर इंप्लीमेंटेशन की तरफ आता हूं। लेट करें ये आपका एक्सेस रूटर है, जो कि एक्सेस पॉइंट है, स्विच है इन अदर केस। जब यहां से कोई डिवाइस ट्रैफिक देती है जी, जो डिवाइस ट्रैफिक देती है जी, जब डिवाइस कोई डिवाइस यहां से ट्रैफिक देती है C1, C2, तो क्या होता है कि ये अपना सोर्स है। जब आईपी यहाँ पे कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर के नेटवर्क लेयर पे आएगा तो वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा।
सोर्स आईपी में लाजमी तौर पे प्राइवेट आईपी लगेगा, नो वरीज। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट से आएगा, ऊपर से आ रहा है ना एप्लीकेशन लेयर से, तो वो इसके साथ सोर्स पोर्ट एसपी और डेस्टिनेशन पोर्ट डीपी लगाएगा। इसका मतलब है जब ये राउटर पे पहुंचेगा तो इसके पास, मिसाल के तौर पे अगर मेरा ही केस है तो उसको आईपी नजर आएगा 192.168.18.6 18.6 18.6 with a port number certain, and that port number will be any number between this range. और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पोर्ट नंबर्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया गया हुआ है। कुछ पोर्ट जो कि 0 से लेके 1023 तक हैं, which are known as well known ports. They are used by well known applications. Well known ports used by well known applications. जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एसएसएच, it is port number 22. If you are using the telnet, it is using port number 23. If it is using, for example, FTP, it is using port number 20 and 21. If you are using the HTTP, it means port number 80. If you are using HTTPS, you are using port number 443. If you are using SMTP, you are using port number 25, and so on. जी, is it any question? नो सर, क्लियर है। वेरी नाइस जी। तो अगर वेल नोन एप्लीकेशन है तो वेल नोन पोर्ट लगाएगी, और अगर कोई रजिस्टर्ड पोर्ट है 1024 से लेके, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन इट इज 49,100 समथिंग, 49,100 up to this, तो these are called as the registered ports. तो वो इदारे, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि सिस्को इस्तेमाल करता है अपनी सिक्योरिटी सर्वर के ऊपर, अपने AAA सर्वर के ऊपर पोर्ट नंबर दिस 1812, because it is not a well known application, but this port shouldn't change, so it has registered its ports with IANA. बात समझ आ गई? और इससे ऊपर जितनी भी पोर्ट्स हैं up to 65,535, they are the temporary ports, जो कि नॉर्मली क्लाइंट एप्लीकेशंस, ephemeral नहीं EPHI ephemeral स्पेलिंग देख लीजिए, ephemeral ports, temporary ports, easy word. तो अगर मैं ये कहूं कि इवन मैं क्लाइंट हूं, मेरी एक ऑर्डिनरी, मुझे एक टेम्पररी पोर्ट चाहिए, तो मिसाल के तौर पे 60,000, लेट इट बी 60,000 पोर्ट नंबर मैंने इस्तेमाल कर लिया। You got the point? And if you don't agree with me, even I can make you agree, and I can show you here. I give the command net stat and enter. You can see my device here, my device is talking to this device on port number 64,229. This device, देखें, my device 192.168, exactly you can see this is my IP address. So Bashir, this with a temporary port 50,719, and I'm talking to this machine 20.198.118.190. Maybe this is the Zoom IP address, and I'm using HTTPS protocol, which is port number 443. Agreed? यस सर। ओके, तो अब हुआ क्या? हुआ यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दें। हुआ ये लेट जेंटलमैन कि मेरा ये एड्रेस तो प्राइवेट है, तो मेरी इस नेट ने क्या किया होगा, उसने इसकी जगह जो उसका ट्रांसलेटेड एड्रेस है विच इज 142.140.148.165 और पोर्ट नंबर ये लगा दिया होगा साथ। तो अब एड्रेस भी यूनिक और पोर्ट से तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सो दिस विल गो टू दिस आईपी विद दिस पोर्ट, and the response will come back to the public IP
which is 192.140.148.165 with the destination port number of this. So it will look at this IP, this port number only, and will remove its own IP and will append the IP which is here. So in this way, the single IP can be used with 65,000 different port numbers. Do you agree with me? Is it make sense to you now? Bashir especially? Yes, sir. Yes, sir. Because you normally you come late normally and you leave then after 5 to 10 minutes. Try to be regular, otherwise you will not be learning. And this is you are a mature person, you are a professional, probably you left. Yes, sir. Absolutely. Okay, so it Okay. will be not of any advantage to you then. Okay, Sir. okay, nice. So I explain here further. In this case, what happens in the PAT, as the name represents, private the port address translation. How it happens that you get from the internally you come with a IP address which is private with a certain ephemeral port mostly, and when it goes to the PAT, it changes it to a address which is 192.140.14. You can see even yesterday I wrote the same IP. It makes sense. It makes sense, Dilaves, that my IP, the yesterday IP, my global IP, जो कल था, I have the same IP address even today. इसका मतलब है कि वही IP चल रहा है. IP is not changing. So it is not a dynamic NAT. Otherwise मुझे आज कोई और IP मिलता. Got the point? Yes, sir. Okay. So that is सर happening. एक ही जी सर बोले. एक ही कंपनी मतलब एक टेलनार या जिस जो टेलीकॉम कंपनी है सर, ये एक ही IP अगर यूज उसके करता पास है सर? 65,000 से कम होस्ट हैं, सब्सक्राइबर हैं, PTCL है, तो PTCL के पास तो 65,000 से ज्यादा है. So they may be using 2, 3, 4 depending upon the users. एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितने यूजर्स इन पे आ रहे हैं. Got it? यूजर पे डिपेंड करता है मतलब. ठीक है ना. अभी आपने कहा कि पोर्ट नंबर्स आपको 65,000 है, 65,535. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 65, मैं रफली कह देता हूं 65,000 होस्ट हैं, तो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए सिंगल आईपी. लेकिन इफ यू हैव फॉर एग्जांपल 2 लाख, if you have 200 million, 200,000 सॉरी, तो इसको तो एक आईपी भी नहीं ले जा सकते. फिर लाजमी तौर पे हम 3 आईपीज पे इसको ले जाएंगे, ताकि हर एक को ये ना हो कि पहले 65,000 को तो मिल जाए और बाकियों को ना मिले, which is not desired. Yes, sir. Yes. Okay? Thank you. Okay, nice. So if it is clear, then let me now come to the practical. In the practical, what I want to explain, gentlemen, here, the topology which I am taking, that I have a router, may I call it R1, your choice, आप मेरे साथ करते हैं या बाद में करते हैं. And this router is connected to a switch, and switch is connected to, you understand, with different PCs. Okay. Then this router, my topic is about the NAT. My router okay. So now here I have the private IP addresses. And अभी हम कुछ भी ले लेंगे. So let it be 1.0, 192.168.1.0 network with /24, and here I have a serial cable, and इसका मतलब ये, this is my edge router, this is my border router, EDG, edge router, or may I call it the border router of my company, because I am teaching the course enterprise networking. So it means this is the edge router of the enterprise.
अभी मैं ITN नहीं पढ़ा रहा कि इट इज योर होम, ठीक है ना? ओके, एंड हियर अगर ये है तो यहाँ पे आई हैव दी public IP addresses, and here I have the router R2. Here I have a router, sorry, another serial cable, and I have a router R3, another serial cable, and I have a router R4 for example. ठीक है जी, यहाँ पे भी कोई IP मैं दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 12.0.0.0, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 23.0.0.0, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 34.0.0.0. So you all can understand that these are the public IP addresses, and here I have the private IP address. So if any one of them is my source, so my destination is somewhat on router R4. So definitely I need to translate these IPs. Let it be here IP is 1.1, here sorry 1.2, क्योंकि 1.1 में राउटर को देना पसंद करूंगा, but there is no rule like this. It is your choice. It is depend upon your design. It is 1.3, 1.4. So definitely this IP need to be translated to, for example, the IP which is here, and that is .1, which means 112.0.0.1. So all my traffic will go because of this, with this IP address. ठीक है? And पोर्ट तो पीसी खुद लेगा, या तो इफ इट इज ए वेल नोन, आई एक्सप्लेन टू यू, इट विल बी फ्रॉम 0 to 1023. If it is registered, then it will be from 1024 up to 49,100 something, and above this value up to 65,000 if it is ephemeral. And I explained to you, मैंने आपको theoretically बात नहीं की, आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि whatever the connections I have, all of them have mostly the ephemeral ports, because I am mostly the client. So clients mostly use the ephemeral ports. Is it clear? Yes sir. देखिए कितने कनेक्शन इस वक्त मेरे चल रहे हैं, देखिए ये लोकल यानी सोर्स, ये डेस्टिनेशन, और ये उसका स्टेट. देखिए कितने कनेक्शंस बने हुए हैं मुख्तलिफ मशीन्स के साथ. प्रेजेंटली आई एम टॉकिंग, देखिए ये मेरा IP और ये मेरी डेस्टिनेशन का IP. सो आई हैव मल्टीपल HTTPS कनेक्शंस. some most of them are in the established state. ओके, अनफॉर्चुनेटली क्लास का टाइम कम हो रहा है, खत्म होने वाला है, तो स्टूडेंट्स पहले ही भागना शुरू हो गए. वेरी बैड. आई हैव ओनली 5 नाउ. अलीना भी चली गई. एनीहाउ, ये नेटवर्क इशू होता है सर, ज्यादातर नेटवर्क इशू होता है ओके, आजकल. जी जी. सर वो आज गालिबन सर वो खबरों में था कि सर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लूज हुआ है क्या? PTCL का आ गया. को मसला था, बट उन्होंने शाम तक उसको कवर कर लिया था उन्होंने. अब इस वक्त कम से कम कोई पाकिस्तान में इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि हमारे लोकल नेटवर्क्स और स्पेशली हमारे जो मोबाइल डेटा के नेटवर्क्स हैं वो ज्यादा तसली बख्श नहीं होते, और अगर नेटवर्क तसली थोड़े हद तक तसली बख्श हो भी जाए तो वापडा कभी भी तसली बख्श नहीं होता. तो कुछ नहीं पता कि वापडा ने अपना काम दिखाया या कोई टेलीकॉम ऑपरेटर ने यानी कि ISP ने अपना काम दिखाया, हमें नहीं पता. सर Anyhow, ज्यादातर BTS में वो बैटरी भी नहीं होता सर बैकअप के लिए, तो जब बिल्कुल जी, इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो बिल्कुल बिल्कुल मसाइल हैं, उसमें कोई शक नहीं. तो मैं इस वक्त दो तीन चीजें इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना चाहूंगा. एक तो मेरा टॉपिक है जो कि पैट है, ये भी मैं करना चाहूंगा, जो कि मैं इस राउटर पे R1 पे इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा. दूसरा, लाजमी तौर पे मुझे तमाम इंटरफेसेस को स्टैटिक IPs देने होंगे, तो IP कॉन्फ़िगरेशन मेरा टॉपिक का हिस्सा है. नंबर थ्री, लाजमी तौर पे यहाँ रूटिंग चाहिए होगी, क्योंकि इसके आपको पता है कि R1 के पास तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं. ये तो इवन 23.0.0 पे भी नहीं जा सकता.
मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, काजी को समझ आ रही है कि इवन राउटर और वन से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं दे कैन नॉट रीच टू इवन 23.0.0.0 नेटवर्क, तो 24 तो दूर की बात, ऐसा ही है ना? क्योंकि आपको पता है कि राउटिंग टेबल के यस अंदर सर। सबसे पहली जो एंट्री आती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड की आती है, डायरेक्टली कनेक्टेड की खुद ब खुद आ जाती है। तो ये दो तो आ जाएंगी, ये और ये दो तो आ जाएंगी, ये दो तो आ जाएंगी, ये और ये जो मैंने रेड में शो किया, लेकिन ये तो नहीं आएंगे। तो या तो आपको बशीर यू हैव टू ऐड द स्टैटिक रूट्स, इन दिस केस यस यू कैन, बट अगेन माय टॉपिक इज नॉट द ITN, my topic is enterprise networking, so I must implement here some routing protocol. तो प्रीवियस लैब में मैंने रिप किया, आज मैं EIGRP की तरफ जाना चाहूंगा ताकि रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमने ये तीन प्रोटोकॉल्स रिप, OSPF और EIGRP RP, अल्दो के ISIS भी है लेकिन इसको इतनी शोहरत नहीं है, यूज नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोटोकॉल की तरफ कभी भी नहीं गया। हाँ, मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगा टुवर्ड्स BGP, which is exterior gateway protocol. Exterior gateway protocol. These are the interior gateway protocols. Make sense? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे EIGRP, इसका मतलब यहाँ मैं लिख देता हूं कि मैं EIGRP PAT एड्रेसिंग और वन थिंग मोर दी DHCP, ताकि इन डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली R1 से IPs मिल जाए। तो दीज आर माय 4 एजेंडा पॉइंट्स, ठीक है। हाउएवर आई अंडरस्टैंड कि मैं 4 के 4 काम आज नहीं कर सकूंगा, ठीक है, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्दो कि ये कनेक्शन भी 1 मिनट और तकरीबन 1 मिनट में ड्रॉप हो जाएगा, और लेकिन फिर भी इतना हद तक पहुंच जाए कि हम उसको अगले वीक में फर्दर आगे ले जाएं, ठीक है। आई होप यू पीपल एग्री विद मी। या ये चाहते हो कि दूसरा ऑप्शन, एज यू विश, दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं जी अभी प्रैक्टिकल टास्क ना स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इन द नेक्स्ट क्लास, बट ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर नाउ कि वी वांट टू डू दीज 4 टास्क्स, वी वांट टू इंप्लीमेंट दीज 4 टास्क्स। जल्दी से डिसीजन बताएं जी, बिकॉज आई हैव लेस देन 1 मिनट, अदरवाइज द जूम विल स्टॉप अस। अगले स्टार्ट करें सर, अगले अगले क्लास में स्टार्ट करूं? यस सर। तो ये सारा पढ़ लोगे जो मैंने आज पढ़ाया? यस सर इंशाल्लाह। एग्री विद दिस उस्मान, काजी, बशीर, दिलावेज? यस सर, ये ठीक है, नेक्स्ट वीक से। चलें ठीक है, ठीक है। तो फिर दिलावेज, बिकॉज यू आर हियर नाउ, तो आई स्टार्ट द सिक्योरिटी दैट।